Hello everyone, welcome back to the Coding Destination. So in the continuation of the DP series that is ongoing on this particular channel, the question today we are going to solve is one of the most asked question in the interviews, one of the standard question in the interviews और जिसके बहुत सारे variants रहते हैं हमारे पास. So the question is LCS, that is longest common subsequence. Okay, तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आस्क्ड क्वेश्चन है इंटरव्यूज़ में. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट, पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ कि वीडियो का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट LCS, व्हाट इज LCS, okay, comparing two strings, then we'll discuss about the approach, and then this video I will code that particular all the functions for you so that you can it can be helpful for you to understand in a better way, right? So in this video we're going to solve LCS, that is longest common subsequence. That is one of the most important questions, but before that I would just like to talk about Newton School that has provided me such an amazing opportunity to interact with you guys, to learn and grow together, right? Talking about Newton School is a platform that gives you opportunity to build your career in tech specifically, right? So it has a 6 months long curated course in which they help you to become a full stack developer by covering all the aspects, all the necessary aspects for a job. And after that Newton School is connected to a lot of companies, right? So they help you to get placed, and the best thing is that you have to pay Newton School after you got placed, right? तो आपको पैसा देना है after you got placed. So it is one of the most amazing opportunities you can say, and if you are interested, do enroll in this amazing session. So now talking back to taking our concept back to the LCS. So LCS, that is longest common subsequence. So most of the thing the name signifies itself, but still I am going to explain you. So LCS is the longest common subsequence. So subsequence is different from substring, right? So let me just first differentiate between substring and subsequence. So my name is Chirag, right? My name is Chirag. So if I talk about CHI, so CHI is a substring, right? If I talk about RAG, RAG is a substring. If I talk about CHAG, is CHAG a substring? No, it is not a substring. So a substring need to be continuous, right? There should be no break in between them. अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें से अगर मेरी CH में अलग लेता और AG अलग लेता, so CH and AG will be substring, right? They will be substring, but they are not combined, right? तो अगर मैं इसको ये हटा दूँ और केवल ये मेरा CHAG रहे तो CHAG is not a substring, है ना? So ये तो substring की बात हो गई, ठीक है? Substring need to be continuous, but अगर मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए यार जो कंटिन्यूस नहीं हो पर उस शब्द में आ रही हो, तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे भाई subsequence, right? So CHAG was a subsequence. CIG is a subsequence, right? But CIG is not a substring, CHAG is not a substring, है ना? But when talking about जैसे CHIR, right? Is CHIR a substring? So let me give a substring mark, ठीक है? तो अपन एक substring और subsequence वाला गेम ही खेल लेते हैं. It is just to get you help with clearing the concept, right? Substring and subsequence of the name Chirag itself. CHI. So is it a substring? Yes, it is a subsequence. Subsequence की definition क्या है? वो सारे elements उस particular string में आने चाहिए, and in substring order matters. In subsequence order matters, right? और जैसे CHI, क्या ये order में है? हाँ है. Okay. CHIAG. Is CHIAG a substring? No, it is not continuous. For substring what we need it to be continuous, right? But it is not. So substring continuous नहीं है. क्या ये subsequence है? Subsequence के लिए क्या, पहली बात तो वो string में होने चाहिए सारे लेटर, right? String में तो है CHIAG. क्या वो sequence में है? क्या वो order एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो उनका order था वो सेम है? तो पहले C आ रहा है, फिर H आ रहा है, फिर I आ रहा है, फिर R इसमें है नहीं, इसमें नहीं है, A आ रहा है, G आ रहा है, yes. तो ये subsequence है, ठीक है? तो एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, देन वी विल मूविंग अहेड. सो CHIAG, ताकि सबको समझ आ जाए, ठीक है? सबको साथ में लेके चलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो कुछ को समझ नहीं आया होगा यहाँ पे, तो जैसे CAG, क्या CAG सबस्ट्रिंग है? नहीं. क्या CAG सबसीक्वेंस है? हाँ. CHIRAG, क्या CHIRAG का सबस्ट्रिंग है? हाँ. क्या सबसीक्वेंस है? हाँ, ठीक है?
तो ये आई होप दिस इज़ क्लियर. अगर अभी क्लियर नहीं हुआ तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट यू इन अ मोर डिटेल, मोर डेप्थ. ठीक है, तो ये था मेरा सबस्ट्रिंग और सब सीक्वेंस. तो अब क्वेश्चन ये नहीं है ना कि अगर मैं लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, तो किस में लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस. ठीक है, तो अब मुझे एक बार आपको क्वेश्चन समझाने दो. तो दिस इज हाउ. अब मुझे पता है कि सबसीक्वेंस सबस्ट्रिंग, सबसीक्वेंस क्या होता है, सबसीक्वेंस से सबस्ट्रिंग अलग कैसे है. ठीक है, और अब जो मेरा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन इज दैट आई हैव टू फाइंड लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस बिटवीन टू स्ट्रिंग्स. सो गिवन स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2. ठीक है, लेट्स से चिराग string 1 and chi is string 2. Okay, so I have to return the maximum longest common subsequence. longest common subsequence की length बतानी है मुझे. ठीक है, you don't have to return the chi or something कि letter कौन कौन सा आ रहे हैं, this and that. You just have to return the number of elements that is in the longest common subsequence. तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा. तो जैसे CHI RAG है, ठीक है, तो इन दोनों का लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस मतलब कौन कौन से एलिमेंट्स हैं दोनों में जो एक ही ऑर्डर में आ रहे हैं और मैक्सिमम लेंथ तक जा रहे हैं. राइट, तो अगर मैं CHI RAG की बात करूँ, CHI RAG, CHI दूसरी स्ट्रिंग, तो ये एक जगह है, हाँ है, ये एक जगह है, हाँ है, ये एक जगह है, हाँ है. ठीक है, तो वोंट द आंसर भी 3, आंसर विल बी 3. राइट, तो आंसर इसका 3 रहने वाला है. क्यों? क्योंकि CHI इज़ द लॉन्गेस्ट कॉमन, इज़ द फर्स्ट मीन्स सबसीक्वेंस ऑफ दिस, है ना. तो CHI तीनों एलिमेंट ही इसमें आ रहे हैं, तो तीनों एलिमेंट ही आ रहे हैं, तो सही है भाई. और अगर जैसे लेट्स से नाउ लेट्स चेंज द स्ट्रिंग. ओके, नाउ लेट्स धीरे धीरे मेक इट मोर कॉम्प्लेक्स. तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ. जस्ट बी विथ मी. स्टार्टिंग में समझ नहीं आएगा, बट इन द एंड इट विल बी लाइक अंडरस्टूड टू ऑल ईच एंड एवरी वन. ठीक है, तो जस्ट बी विथ मी, साथ रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो अब लेते हैं कि एक ABC एंड दूसरी लेट्स से AC. तो व्हाट शुड बी आंसर अकॉर्डिंग टू यू. ठीक है, तो आंसर इसका क्या रहने वाला है. तो मुझे क्या देखना है कि लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस. तो सबसीक्वेंस की एक प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि मुझे बार बार बोलनी ना पड़े. तो सबसीक्वेंस के लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. पहली तो थोड़ा अच्छी राइटिंग में ही लिख देते हैं, एलिमेंट्स should be common in between them, right? Common elements होने चाहिए. And second, order should be followed, right? एक तो order follow होना चाहिए और elements जो हैं वो common होने चाहिए. तो पहले तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से elements common है भाई. A common है, हाँ भाई A भी common है. C common है, हाँ भाई C भी common है. क्या A और C ऑर्डर में है दोनों स्ट्रिंग में? हाँ. क्या A C के बाद आ रहा है? हाँ भाई आ रहा है. क्या A C के बाद आ रहा है? हाँ भाई आ रहा है. तो मेरी जो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस है AC, एंड व्हाट वी हैव टू रिटर्न, वी डोंट हैव टू रिटर्न द स्ट्रिंग. मैंने पहले भी ये चीज़ बोली थी, वी हैव टू रिटर्न द लेंथ. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2. ओके, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू. एक और एग्जाम्पल करते हैं, फिर अपन मूव करते हैं अप्रोच की तरफ. ठीक है, मैं एग्जाम्पल ज़्यादा कराता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटर. क्योंकि अगर क्वेश्चन ही समझ नहीं आया एंड वी जस्ट डायरेक्टली जंप इन टू द कोड ना, इट इज़ ऑफ नो मीनिंग. मीन्स वी आर नॉट जस्ट लाइक अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एज वेल एंड वी आर जस्ट ब्लैबरिंग द कोड. तो रटने से कोई फ़ायदा है नहीं है सच. ठीक है, तो ABCDGH, देयर इज एन एग्जाम्पल दैट आई हैव रिटन ABCDGH, है ना. एंड स्ट्रिंग 2 इज AEDFHR. AEDFHR. So this is going to be a slight tough one as compared to the previous examples. तो सबसे पहले तो मुझे देखना है कि एलिमेंट्स कॉमन कौन कौन से हैं. क्या A है? हाँ A है. क्या E है? नीचे वाले से ऊपर देखते हैं, E नहीं है. क्या D है? हाँ D है. क्या F है? नहीं F नहीं है. क्या H है? हाँ H है. क्या R है? नहीं R नहीं है. ठीक है, तब मैंने तीनों एलिमेंट्स देख लिए. अब दूसरी ये मेरा हो गया, मुझे मिल गया. क्या ऑर्डर फॉलो हो रहा है? क्या A D के बाद है? हाँ. क्या D H के बाद, क्या D के बाद H, मतलब A के बाद D है, D के बाद H है. हाँ ठीक है, तो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क. तो यहाँ पे ADH मेरा आंसर आ गया. सो दिस इज़ हाउ वी फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस. पर ये तो हमने बात कर ली कि हाउ वी मैन्युअली डू इट. ठीक है, अब कोड को कैसे समझाना है. तो कोड को समझाने के लिए एक अप्रोच है. तो लेट मी जस्ट राइट ऑल द थिंग्स अगेन. तो यहाँ पे हम LCS की बात कर रहे थे. तो मेरी स्ट्रिंग 1 मैं ले लेता हूँ, अभी यही ले लेता हूँ. फर्स्ट लेट स्टार्ट विद ABC, राइट. देन वील जस्ट जम्प टू स्लाइट हार्डर एंड देन वील मूव टू कोड ABC एंड AC, राइट. अब जब मुझे कंपेयर करना है, ठीक है, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट थिंग. ठीक है, अगर इक्वल है
अगर इक्वल है तब तो मुझे कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब अगर एलिमेंट्स इक्वल है, जैसे अगर मैं पीछे से इटरेट करना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, तो ऑर्डर विल बी फॉलोड, राइट, क्योंकि मैं दोनों में ही पीछे पीछे से शुरू कर रहा हूँ, एंड द वे विल मूव द ऑर्डर विल बी फॉलोड, ठीक है। तो अब मुझे क्या देखना है कि स्ट्रिंग में एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो मेरा मेन मुद्दा हो जाता है देखने का। तो अगर मेरे सी और सी ये दोनों मैच कर गए, है ना, तब तो कोई इशू है ही नहीं। तो काउंट जो मेरा है, काउंट उसमें +1 कर दो, है ना, और फिर इसमें और इसमें देखो क्या बी और ए मैच कर रहे हैं, नहीं, बी और ए मैच नहीं कर रहे, ठीक है। देन व्हाट वी विल डू, आइदर वी विल मूव टू द रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग हेयर और वी विल मूव टू द रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग हेयर, बट यहाँ तो स्ट्रिंग एम्प्टी हो गई, तो यहाँ तो हम जा नहीं सकते, फिर हम यहाँ गए, फिर हमने ए से ए को चेक किया, क्या ए और ए मैच कर रहे हैं, हाँ, तो काउंट विल बी 2, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल थोड़ा छोटा हो गया, मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ यू शुड नॉट गेट इट, राइट, should not have get it वैसे, so let me just explain to you with the help of a big example, right? So the example that we are going to take is that ABC वाला, A B C D G H and string 2 मैं इधर ही लिख लेता हूँ, A E D F H R, ठीक है। तो अब मैं ना लास्ट स्ट्रिंग से चलने वाला हूँ, तो इफ़ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट, ठीक है, तो मैं दोनों के यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है। So the first thing that you need to check is, the first thing that you need that you will check is कि if both the letters are equal, अगर लेटर इक्वल है ना, बिकॉज दैट अगेन थिंग आई वांट टू रिपीट अ थिंग, क्योंकि मैं लास्ट से चल रहा हूँ तो ऑर्डर विल बी फॉलोड, राइट। तो सेकंड कंडीशन की मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आई एम फॉलोइंग द ऑर्डर, क्योंकि मैं पीछे दोनों स्ट्रिंग में ही पीछे से चल रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं एक में आगे चल रहा हूँ एक में पीछे चल रहा हूँ, दोनों में पीछे से चल रहा हूँ, तो ऑर्डर विल बी फॉलोड। सो दैट इज़ नॉट अ थिंग टू वरी अबाउट। द थिंग टू वरी अबाउट इज क्या एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो एच और आर मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो देन वी आर लेफ्ट विथ 2 ऑप्शंस कि आइदर आई विल चेक ABCDG एंड ACDFHR, और आई विल चेक, एक तो मैं ये चेक करूँगा, और या तो मैं चेक करूँगा ABCDGH एंड AE, राइट, AEDFH, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया कि या तो जैसे अब दोनों एलिमेंट मैच नहीं कर रहे हैं, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है ना, कि या तो मेरा H इस सब सीक्वेंस में हो सकता है, या तो मेरा R इस सब सीक्वेंस में हो सकता है, ठीक है। अगर जैसे लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन वंस मोर, ठीक है। जैसे अब मेरा अगर इक्वल हो गया तब तो मेरे सब सीक्वेंस में वो एलिमेंट आ रहा है, अगर इक्वल नहीं है तो फिर मेरे पास 2 ऑप्शन है ना, कि या तो पहली सब सीक्वेंस का जो आखिरी एलिमेंट है उससे मेरा सब सीक्वेंस बन सकता है, या स्ट्रिंग सेकंड का जो मेरा आखिरी एलिमेंट है उससे सब सीक्वेंस बन सकता है, ठीक है। अगर मेरे पहले एलिमेंट से सब सीक्वेंस बन रहा है तो मैं ये नीचे वाला ऑप्शन चूज़ करूँगा, ठीक है। पहले एलिमेंट से मेरा अगर सब सीक्वेंस बन रहा है तो मैंने इस स्ट्रिंग को पूरा लिया और इस स्ट्रिंग को वापस कंपेयर कर रहा हूँ, तो जैसे, ठीक है, जैसे है ना, एंड जैसे फिर इसका अब मैं आगे समझाऊंगा तो आप धीरे धीरे और समझ जाएंगे, ठीक है। 3rd 4th इटरेशन तक आई एम 110% श्योर समझ आ ही जाएगा। एंड अगर मैं इसमें कंसिडर करता हूँ कि जो R एलिमेंट है उससे सबसीक्वेंस बन रहा है, तो मैंने क्या किया कि ऊपर से एक एलिमेंट हटा दिया कि मैंने H नहीं लिया और फिर R को ले लिया, ठीक है। तो इट इज़ नथिंग बट लाइक द रिकर्सिव में हमारे पास जो 2 अप्रोच होती है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग में एक पॉइंट पे हमारे पास कितने ऑप्शंस है, यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शंस है, या तो वो स्ट्रिंग में या तो वो एलिमेंट सबसीक्वेंस है या सबसीक्वेंस में नहीं है, ठीक है। 2 ही ऑप्शंस है मेरे पास हर एलिमेंट के लिए, या तो वो सबसीक्वेंस में है या सबसीक्वेंस में नहीं है। तो फर्स्ट में मैंने चेक किया कि R इज़ इन द सबसीक्वेंस, है ना, एंड H इज़ नॉट। एंड सेकेंड में मैंने चेक किया H इज़ इन द सबसीक्वेंस एंड R इज़ नॉट, ठीक है। तो अभी हम यहाँ तक आ गए, है ना। तो जस्ट लेट मी पुट इट इन अ बेटर ग्राफ. So if I'm going to explain the code in this video as well, so it will be a more lengthy video. So what we can do, we can just get it till now, and in the next video I will start with some more examples, and then we'll move to the code, the approach, the base cases, and all the things, so that you did not get bored, and all the concepts are that you are getting in it in a good way and refreshed mood, right? So let's meet in the next video. That is the part 2, right? So stay tuned to the part 2. It will be on the channel tomorrow 6 p.m. Thanks. Also, if you like this video, do hit a thumbs up and subscribe to this channel. And also, if you like the Newton School project, do enroll in it. So thanks for watching.